गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं एस.सी. भारद्वाज टीचिंग इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाया है, रिप्रोडक्शन यूनिट नंबर 1 CBSE बोर्ड क्लास 12, उसी की सीरीज में आज मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट, रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिजम्स। चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1। सो स्टूडेंट, वी विल स्टडी टुडे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल डिस्कस what are higher organisms. Higher organisms are those organisms in which clearly shown sexual reproduction, like flowering plants and most of animals. In these plants and animals, sexual reproduction take place by the fusion of male and female gametes. So first of all, we will discuss what is sexual reproduction. Very important lecture today class student, because in this lecture various type of terms are involved, which are very important for your examination purpose and your competition base. So we will first study what is sexual reproduction. Let's see. Sexual reproduction. Sexual reproduction is also known as syngenesis or amphimixis. Amphimixis किसी चीज का मिक्स हो जाना। एम्फी का मतलब उभयधर्मिता। एम्फोटेरिक होते हैं स्टूडेंट्स। एम्फोटेरिक मीन्स क्या होता है? एम्फोटेरिक मीन्स होता है किसी एक चीज का पार्ट लेना और किसी दूसरा पार्ट लेना, और आधे आधे हाफ पार्ट को क्या करना, फ्यूज कर देना, तो उसको कहते हैं एम्फी। और मिक्सिस का मतलब होता है किसी चीज़ का सर्कुलेशन में इन्वॉल्व हो जाना। तो वाई एम्फी मिक्सिस कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बिकॉज हियर 50% पार्ट ऑफ मेल गैमीट्स एंड 50% पार्ट्स ऑफ फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व, देन कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एम्फी मिक्सिस मीन्स करता है सम पार्ट ऑफ मेल एंड सम पार्ट ऑफ फीमेल मिक्सिस टुगेदर। ओके, नेक्स्ट, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन which involves the formation of male. It is the symbol of male students, and female. It is the symbol of female gametes, either by same individual or by different individuals of opposite sex. Very important condition. The mode of reproduction which involves the formation of male and female gametes, either by same individuals or by different individuals of opposite sex. अपोजिट सेक्स का होना वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइदर बाय सेम इंडिविजुअल्स और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्स इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट, दीज गैमेट फ्यूज टू फॉर्म ए न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट, which entirely develop into a new individual. तो formation of zygote by the fusion between male and female gametes. Okay, next, sexual reproduction is exhibited by multicellular organism, that is all flowering plants and most of the animals. Students, sexual reproduction is the most important condition of flowering plants, that is angiosperms. Students, plants are divided into two groups, that is angiosperms and gymnosperms. Angiosperms मीन्स होते हैं फ्लोवरिंग प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म होते हैं नेक्ड प्लांट्स होते हैं। दीज आर लोअर प्लांट्स, दीज लाइक पाइनस, साइकस, दीज आर जिम्नोस्पर्म्स। एफिड्रा, जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स ऑल के हर प्लांट्स लाइक आपका फैमिलीज है, जैसे आपकी कुकरबिटेसी है आपकी फैमिली, ऑल फैमिलीज बिलोंग टू एंजियोस्पर्म्स मोस्टली। तो angiosperms are those plants in which sexual reproduction take place. Gymnosperms are those plants in which asexual reproduction take place mostly. Okay, students. Next, sexual reproduction exhibit multicellular organism. So sexual reproduction is the characteristic feature of multicellular organisms. Okay. Next, the period. One thing also add in this line, plants are following two types, phanerogames and cryptogames. Phanerogames and cryptogames. Okay, next,
The period during which an organism to attain the sexual maturity is called juvenile phase and vegetative phase. Students, a period of a stage in which an organism attains sexual maturity, एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म क्या कहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर होता है, मैच्योर हो जाता है सेक्सुअली, तो वो फेज स्टेज क्या कहलाते हैं, जुवेनाइल फेज इन एनिमल्स। और उसी फेज को आप प्लांट्स में क्या कहेंगे, वेजिटेटिव फेज। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, द फेज इन विच एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली, एक ऐसी अवस्था जब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कर देता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उस फेज को क्या नाम दिया स्टूडेंट्स, उस फेज को नाम दिया यहाँ पे इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। ये रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है स्टूडेंट्स। ओके, इसे क्या कहते हैं आप, रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट, द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट ऑफ अनदर फेज कॉल्ड सेनिसेंट फेज। स्टूडेंट्स, आपने देखा क्या, मेल एंड फीमेल फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट से एन इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ, इंडिविजुअल धीरे धीरे क्या हुआ, मैच्योर हुआ, उसने सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन किया, तो आपने उनको दो फेज के नाम से जाना, जुवेनाइल फेज इन एनिमल्स और वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। ओके, लास्ट जब स्टूडेंट्स क्या हुआ, धीरे धीरे डिके ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन ऑर्गेनिज्म, देन अटेन टू ए फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल that is called senescent phase, also called old phase. Or in this phase, students, plants and another animals dies after this phase. Okay, so we can say senescent phase is also called last phase of life cycle of an organism. Clear? Okay. The end of reproductive phase is marked by the onset of another phase called senescent phase, which is the last phase in the life cycle of an organism. Or this phase is also called old phase. After this phase, an organism क्या था, will die. वो क्या होगा, मर जाएगा। Okay, clear. So these points are enough for sexual reproduction definition explanation. Okay. And first of thing, I inform all of you. Any definition always given in bloods, not a paragraph. Okay, clear. Next, sexuality in plants. Now we will see sexuality in plants. What is sexuality in plants? Sexual reproduction previously discussed by following points. Now, sexuality in plants, these terms are defined by some following important terms. These terms also very important in any competitive exam, like teaching exams, like NET exams, like any other science biology related exams. Okay, first term we can see monoecious. Mono, that is mono means single. In some plant and algae, student, carefully read. In some plants and algae, the male and female reproductive structures may be present on the same plant. मोनो का मतलब वन, मैंने भी आपको बताया था वन। तो ऐसे प्लांट जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो क्या हो, एक ही प्लांट पर, अर्थात सेम प्लांट पर। दीज प्लांट्स आर कोल्ड मोनोसियस और होमोथैलिक। होमो का मतलब सिमिलर और थैलिक का मतलब थैलस स्ट्रक्चर। जब एक ही सिमिलर स्ट्रक्चर मिलती हैं एक ही प्लांट पे, तो उसे आप होमोथैलिक और मोनोसियस कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, तो मोनोसियस प्लांट के एग्जाम्पल्स क्या हैं, कारा, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन अलगी, फ्रेश वाटर अलगी है कारा। इसके बाद कुकरबिटेसी क्या है आपकी, कुकरबिटेसी फैमिली है जिसमें कुकरबिट्स मिलते हैं आपके, जिन्हें आप कहते हैं करेला है, उसमें कद्दू है, उसमें आपका मिलन है, वाटर मिलन है, ये सब क्या है, कुकरबिटा फैमिली के एग्जाम। लास्ट कोकोनट, कोकस म्यूसिफेरा, वेरी इंपॉर्टेंट कोकोनट, अरिकेसी फैमिली का है। और कोकोनट स्टूडेंट एक ऐसा
ऐसा फ्रूट है जिसमें आपका क्या होता है, न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म बोथ आर प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट डायोसियस। इन सम लोअर प्लांट्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मे बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। डायो का मतलब तो जहाँ आपकी दो अलग अलग अवस्थाएं हों, तो ऐसे प्लांट जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फाउंड ऑन डिफरेंट प्लांट्स आर कॉल्ड हेटेरोथेलिक्स प्लांट और डायोसियस प्लांट। फॉर एग्जांपल मार्केंशिया, very important bryophyte. Markensia is a very important bryophyte. And date palm खजूर जिसे आप कहते हैं, the viability of date palm is 3000 years. इसकी सीड की वाइबिलिटी ऑफ डेट पाम जो होते हैं वो 3000 साल से भी ज़्यादा होती है। ओके, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, वी कैन से मोनोसियस प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच हैव male and female reproductive structures on same plant, and we can say also dioecious plants are those plants in which male and female reproductive structures may be present on different plants. Okay, clear? Okay students, next today discuss about the very important two definitions, monoecious and dioecious. स्टूडेंट्स, हमने ये चैनल जो है आपके लिए विशेष तौर से ऐसे बच्चों के लिए बनाया है जो कोचिंग लेने में असमर्थ हैं। तो हमारे टीचिंग इंस्टीट्यूट भारद्वाज टीचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ऑल बोर्ड्स आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कर सकते हैं, डिटेल में कर सकते हैं और वेरी इफेक्टिव वे में कर सकते हैं। जैसे आपका मोनोसियस क्या होता है, डायोसियस क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो इस सीरीज में आप इस चैप्टर को कल हम नेक्स्ट वीडियो आगे डालेंगे, इसको आगे आपका इंक्रीज करेंगे। इसी क्रम में आपको एक एक वीडियो स्टूडेंट्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड 11th और 12th यूपी और सीबीएसई बोर्ड की मिलती रहेगी। और स्टूडेंट, ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कॉस्ट ऑफ फ्री है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है इस प्लेटफॉर्म की। इस प्लेटफॉर्म पे आप कोई फीस नहीं देंगे। आजकल स्टूडेंट इस कहा जाता है कि कॉस्ट ऑफ फ्री है, लेकिन क्या करते हैं, पेड बैच बना लेते हैं और उनको मेंबरशिप के नाम पे आपको फीस ली जाती है। वो मंथली भी चार्ज की जाती है और एनुअली। बट स्टूडेंट, इस प्लेटफॉर्म से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री है। तो आपसे हमारा यही केवल रिक्वेस्ट है, आप इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।